Welcome everyone. My name is Dr. Venus, and I welcome everyone for this session of Talking Science with Dr. Venus. आज हम बात करेंगे Dr. Bindia जी से, who is going to tell us about bits and qubits of quantum computing. So our guest, she's Dr. Bindia, and I'm pretty sure everybody knows about her. That I mean, we have got a lot of good response, and I'm hoping to have a very, very nice conversation with her. डॉक्टर बिंदिया, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा. जो लोग आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन. डॉक्टर बिंदिया ने अपनी बीएससी 98 से लेकर 2001 में कंप्लीट करी है. बीएससी ऑनर स्कूल इन फिजिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, फिजिक्स डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी. आफ्टर दैट शी कंप्लीटेड हर मास्टर्स फ्रॉम द सेम प्लेस फ्रॉम 2001 to 2003. Then she decided that she will do her doctorate studies, and she decided that she will do it from abroad, not from India. So she appeared for the GRE exam, and then she went to University of Delaware and did her PhD, doctorate studies in atomic clocks and quantum computing, basically atomic physics for very, very simple, in very, very simple terminology. She did her PhD with Professor Mariana, and she finished her PhD in 2008, and then she came back and worked as a freelancer and as a teacher and a researcher for another 2 years. And then she also had a short stint as a DST fast track scientist in IISER Mohali. And in 2011, she finally decided to join the Guru Nanak Dev University, Amritsar, and she has been continuing as a faculty member in Department of Physics in Guru Nanak Dev University since then. And यहाँ पे वो जो अपना उनका she has to do teaching as well as उनको research भी करनी होती है, and the research she is pursuing is also again in atomic physics. So she is a trained scientist in the field of atomic physics, and she is also venturing into astrophysical sciences and theoretical sciences and quantum computing, and that is the reason why we are talking to her. So she has a very, very good hold over this field, command over this field. She has a good experience, national experience, international experience, and we would really love to. And the idea जो आज हमारे इस सेशन का है कि हमने इस क्वांटम एक ऐसी चीज है जिसको आजकल अगर आप मूवीज देखो या कोई भी साइंस फिक्शन मूवीज देखो, उसमें कहीं भी किसी चीज को मसालेदार या कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, जैसे वो एवेंजर्स की भी लास्ट मूवी आई थी, तो उसमें भी है कि द पर्सन वेंट इनटू द क्वांटम रेल्म एंड ऑल दैट. सो किसी भी चीज को साइंस फिक्शन में तुम्हें complicated banana hai, so people resort to something called quantum. Now quantum is like it's a fancy word which people are using. So हमारा जो आज का I mean जो मंतव्य है इस चीज को करने का सेशन का is to understand what basically is quantum world. So इससे पहले कि हम quantum कंप्यूटिंग में जाए कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, विच इज लाइक इवन मोर फैसिनेटिंग थिंग, हम सबसे पहले बिंदिया जी से ये पूछना चाहेंगे कि बिंदिया जी हमें थोड़ा सा ये बताइए कि व्हाट इज क्वांटम, मतलब क्वांटम वर्ल्ड है क्या, क्वांटम रियल्म, क्वांटम की दुनिया, प्लीज हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. तो क्वांटम वर्ल्ड सबको पता है. क्वांटम फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, और ये बहुत हाईली, इट्स वेरी हाईली नॉन इंट्यूटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर इवन स्मार्टेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, आई वुड से. और इस वर्ल्ड में कुछ वियर्ड चीजें होती है, मतलब सुनने में इतना एब्सर्ड और क्रेजी साउंड करता है. फॉर एग्जांपल क्वांटम वर्ल्ड में पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट is totally fine. There's nothing weird about parallel universe. So parallel universe, something similar to our universe, but वहाँ पे कोविड नहीं है इस समय. ओके. तो मतलब आप कह लीजिए कि हमारे ही दुनिया की एक कॉपी या मल्टीपल कॉपीज, जैसी हम इस दुनिया में रहते हैं उसकी मल्टीपल कॉपीज, पर हर एक दुनिया में अलग अलग चीजें हो रही हैं, पर हैं इसी की कॉपीज. तो ये चीजें हमने मूवीज में देखी हैं, ऐसी चीजों पे साइंस फिक्शन मूवीज बनती हैं, बट क्या ये एक्चुअली में दीज थिंग्स are I mean as per the theory और या possible है या क्या है? बिल्कुल possible है. quantum realm में all these are possible. Okay. But when we talk about universe, it's a classical concept, it's a macro object, right? Okay. But अगर हम quantum world की बात करें, quantum universe होता, कुछ atoms का universe होता, तो वहाँ पे definitely ये possible है, और होता ही है actually. बहुत उनकी जो quantum world की जो reality है वो बहुत different है as compared to the reality of our world. क्वांटम वर्ल्ड की रियलिटी प्रोबेबिलिस्टिक है, इट्स नॉट फिक्स्ड. सो फॉर एग्जांपल आई एम अ क्लासिकल सिस्टम, मैं यहाँ बैठी हूँ. इफ आई आस्क यू टू फाइंड मी, यू विल डेफिनेटली से, oh, Bindya is at home using Zoom, right?
Okay. But let us suppose I was a quantum Bindya. Okay. And I asked you to find me. Mm-hmm. So before you start looking for me, Mm-hmm. you would say there's a 75% probability that I'm at home, 10% probability I'm at office, and 15% probability I'm in mall. Okay. Something अच्छा like that. यहाँ पे जरा सा मैं ये बता दूं, जब आप बोलते हो कि क्वांटम वर्ल्ड, मतलब वो कोई अलग तरह की दुनिया है या आई मीन बेसिकली जितना मैंने अभी तक जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि आई मीन जब हम दो चीजों को बोलते हैं क्लासिकल और क्वांटम, बट क्लासिकल वर्ल्ड भी तो क्वांटम चीजों से ही बनना हुआ है अल्टीमेटली। तो हमारे अंदर ही हम वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एट वेरी वेरी इन वेरी वेरी स्मॉल डायमेंशनल पार्टिकल्स। सो जब आप क्वांटम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो एक्चुअली में हमारे क्लासिकल वर्ल्ड जो हम इसको जो हम देखते हैं इसको हम क्लासिकल वर्ल्ड बोलते हैं, और आप किसी और चीज की बात कर रहे हो, वो चीज हमसे मतलब अलग कैसे, मतलब आप किस रीजन की बात करें, कौन लोग क्वांटम की बातों को फॉलो करते हैं, कौन से पार्टिकल्स, कौन सी चीजें? तो मैं एक्चुअली मैं कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहूंगी आपके दैट वुड बी एक्सीलेंट। जस्ट टू या क्योंकि मुझे लगता है विजुअली देखना और सिर्फ वर्बली बोलने में बहुत डिफरेंस होता है अंडरस्टैंडिंग का। डेफिनेटली। तो आई विल शेयर दिस, एंड जो फिजिक्स हार्डकोर फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू देम दैट द स्लाइड्स व्हिच आई हैव मेड आर एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट, बट इट वाज रिक्वायर्ड कि मैं समझा सकूं उसको बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल एक बच्चे के लेवल पे आकर। ओके। तो जो आप कह रहे हैं ना कि ये क्वांटम वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड है, किन पार्टिकल्स पे ये वर्क करता है, ठीक है। क्लासिकल वर्ल्ड बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक कार है, बॉल है, जब हम इसकी साइंस या इसकी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स एक टर्म यूज होती है, वो अप्लाई करते हैं। और क्वांटम फिजिक्स इज दैट ब्रांच जहां हम एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, छोटे बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर। ओके। और जो एक क्लासिकल और क्वांटम का कंसेप्ट है वीनस जी, ये बहुत मतलब डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्लासिकल वर्ल्ड यू कैन विजुअलाइज, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल क्लासिकल वर्ल्ड में कार है आपके पास, और कार के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि कार इस समय यहाँ है और इतना उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो आप एक समय बाद डेफिनेटली बता सकेंगे कि वो कार 5 मिनट बाद कहां पर होगी। ओके। पर क्वांटम वर्ल्ड जो है, क्वांटम वर्ल्ड जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, वो डेफिनेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉक्स है, लाइक एग्जाम्पल हम इमेजिन करते हैं, बॉक्स है क्वांटम बॉक्स, उसके अंदर ये बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम्स है। ओके। और एक समय पर ये रेड एटम कहीं पर है और मैं आपको पोजीशन दे देती हूँ उसकी कि रेड एटम यहाँ है, और उस पर मैं आपको सारे फोर्सेस भी बता देती हूँ, अलग अलग तरीके के ये फोर्सेस लग रहे हैं, और मैं आपको कहूँ 5 सेकंड बाद आप इसकी पोजीशन निकालिए। ठीक है। तो क्वांटम वर्ल्ड में ये पोजीशंस आप प्रोबेबिलिटी या चांसेस से बोलेंगे, कहेंगे 20% चांसेस है वो यहाँ है, 15 इधर, 35 इधर, 25 इधर। एंड व्हाट इज इवन मोर वियर्ड एंड क्रेजी इज कि कुछ परसेंट चांसेस है कि वो पार्टिकल आपको बॉक्स से बाहर भी दिखाई दे सकता है। ओके। तो इन अदर वर्ड्स, कार बिना वॉल को तोड़े बाहर दिख रही है आपको। ओके। तो ये जो कंसेप्ट है कि आपको पार्टिकल एक बॉक्स के बाहर भी दिख सकता है, क्वांटम पार्टिकल, इसको हम क्वांटम फिजिक्स टर्म में क्वांटम टनलिंग कहते हैं। ठीक है। टनल थ्रू कर जाना। तो अगर मेरे पास क्लासिकल बिंदिया है, लेट्स से मैं भाग के आ रही हूँ और मुझे एक वॉल क्रॉस करनी है, ऑब्वियसली मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है मैं वॉल को क्रॉस कर पाऊंगी, मैं वहीं पे फॉल डाउन। What I need to do is I need to climb up the wall, right? I need that much energy to climb up the wall. I cannot go through that wall. But अगर मैं quantum बिंदिया होती, that would have been possible, that I could have tunneled through the wall. It's like not breaking through the wall, disappearing from one end and appearing at the outside. That is quite crazy. और कुछ एस्पेक्ट्स है मैं वो भी बताना चाहती हूँ जो क्वांटम वर्ल्ड को इतना वियर्ड बनाते हैं जी। तो जैसे जितने आप ऑब्जेक्ट्स अराउंड देखते हैं, जितने भी आप इस वर्ल्ड में चीजें देख रहे हैं, वो दो कैटेगरीज में वी कैन डिवाइड। वन इज द पार्टिकल कैटेगरी। सो पार्टिकल्स आर लाइक ऑब्जेक्ट्स विच यू कैन लोकलाइज। मैं कह दूं वो बॉल वहां पड़ी है,
या वीनस इस समय अपने घर पर बैठे हैं. So I'm localizing you, right? You have a mass, you have density, volume. I'm localizing it. And the other kind of things are which have wave nature. For example, sound. Sound का wave nature है. So it's not localized. You cannot tell where exactly it is at a point. So quantum particles हैं, वो dual nature show करते हैं. They are wave and particle at the same time. तो ये जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं बेसिकली आप कह लीजिए कि जो हमारे एटम्स हैं या उससे भी छोटे पार्टिकल्स, मतलब उससे भी छोटे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स. ओके तो मतलब जो क्वांटम के रूल्स हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि दीवार में से निकल जाना, जो हम लोग नहीं कर सकते, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, या बड़ी चीजें नहीं कर सकती, कार या कोई भी एक बॉल या कुछ भी, तो क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं ये सब ये चीजें कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड वो क्वांटम पार्टिकल्स कहाँ से शुरू होते हैं, कौन से साइज से शुरू होते हैं, आप हम अगर बोलना चाहें? एटॉमिक स्केल के बाद एवरीथिंग इज क्वांटम. सो एटम का साइज, Okay. हाइड्रोजन एटम का साइज हम रफली कहते हैं ना, बोहर रेडियस इन लाइक मोर टेक्निकल टर्म. सो उससे छोटा जो भी है, नैनोमीटर रिजीम. सो उससे छोटा जो कुछ भी है वो ऐसी चीजें फॉलो करेगा कि वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, वो जी. दीवार में से निकल सकता है, वो सब चीजें वो फॉलो करेंगे. उनकी मतलब अलग ही दुनिया है, उनके अलग ही रूल हैं, और जिनको हम उसी quantum- वर्ल्ड को, वो दुनिया जिसमें वो रूल्स फॉलो होते हैं, उनको हम क्वांटम वर्ल्ड बोलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, दैट इज गुड. तो ये डुअल नेचर सुनने में बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है. यू कैन नॉट विजुअलाइज इट. एनीथिंग व्हिच हैज पार्टिकल एंड वेव बोथ, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो मोस्टली जब बच्चे मुझे कहते हैं ना कैसे विजुअलाइज करें, I tell them it's not possible to do that. But what's good about physicists and mathematicians are कि जो चीज हम visualize नहीं कर पाते ना, हम उन्हें mathematically quantities में डाल देते हैं. So for us, for physicists, we have found out a way to write these particles in a form. तो ना तो हम उनको waves बोलते हैं, ना हम उन्हें particles बोलते हैं, हम उनको एक wave function बोलते हैं, जिसको हम psi बोलते हैं in more technical terms. Okay. So this psi actually gives us a good handle to manipulate these objects mathematically. Okay. तो कुछ और aspects हैं. Superposition है, बहुत लोगों ने सुना होगा superposition, simultaneous existence of two or more quantities. तो मैं उसके लिए एक बहुत trivial सा example देना चाहूंगी कि स्कूल के बच्चे भी शायद समझ पाए. Let's say मेरे पास एक coin है, ये मेरा classical coin है. क्लासिकल वर्ल्ड में, और मैं आपको कॉइन दिखा रही हूँ, तो या तो मैं आपको हेड्स दिखा सकती हूँ या टेल्स दिखा सकती हूँ, राइट? कैन यू सी दैट? ये बिल्कुल क्लासिकल कॉइन है. ईदर इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल. बट लेट अस से इफ आई स्टार्ट स्पिनिंग दिस कॉइन. ओके. नाउ व्हेन आई एम स्पिनिंग दिस कॉइन एंड आई आस्क यू whether this coin is heads or tail, will you be able to tell me? Obviously right? not. Obviously हम not. ये बता सकते हैं कि किस दोनों के होने के चांस बराबर है. Exactly. So this is you are going to tell. You are going to talk in terms of probabilities. आप कहेंगे कुछ probability है कि वो heads में है and कुछ probability है वो tails में है. So ये superposition इसी. तो मतलब ये है कि जैसे हम जो भी क्वांटम वर्ल्ड में जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी क्वांटम रूल्स को फॉलो करते हैं, हम उन पार्टिकल्स की एग्जैक्ट जगह ठिकाना नहीं बता सकते. वो हर जगह हैं भी और हर जगह नहीं भी हैं. जी. हर जगह पे उनके होने के चांस हैं या नहीं है. सो हर चीज ऐसे ही बात करी जाएगी, ना कि हमारी तरह की तुम ऑफिस में हो या घर हो. हम ये बोलेंगे कि 90% चांस है कि आप घर पे हो और 5% चांस है कि आप ऑफिस में हो. तो ये ऐसी दुनिया है बेसिकली. जी. सारी प्रोबेबिलिस्टिक अनडिटरमिनिस्टिक दुनिया है जो सब प्रोबेबिलिटीज पे चलती है. ठीक है. बट प्रोबेबिलिटी पे चलती है, बट लेट्स से मैंने एक स्पिन कर रही थी कॉइन, राइट? एंड व्हाट आई डिड व्हाइल इट वाज स्पिनिंग, आई स्टॉप इट, which we call as measurement, doing measurement on a quantum system. So if I do a measurement, what do you expect? You would expect that either I'll have a tail, head or a tails, right? So this is what happens in quantum system, that as soon as I do a measurement on my quantum system, my original quantum system, it destroys. Original quantum system मेरा superposed state में था, superposition of head and tail. But जब मैंने उसमें measurement करी, ओरिजिनल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया और मुझे या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा. ये क्लासिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता. क्लासिकल वर्ल्ड में अगर मेरे पास एक कॉइन पड़ा है और मैं उसको देख रही हूँ, तो हेड में तो वो हेड में ही रहेगा, टेल में नहीं चेंज हो जाएगा. एंड
world of quantum, you can say realm, it gives us something called entanglement. Okay. ये सारे concepts जो मैं आपको बता रही हूँ actually directly quantum computation से related है. यही सारे aspects quantum mechanics के, quantum world के quantum computers को बहुत powerful बना देते हैं. Okay. एक concept है ये quantum entanglement का. Okay. Quantum entanglement शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत समझ नहीं आता है बहुत अच्छे से. वो मूवीज में कई बार जरूर मैं बोलूंगा कभी ना कभी उन्होंने ऐसी टर्मिनोलॉजी बोली है, बट आप समझाइए, हमें एक्चुअली जानना चाहते हैं ये है बिल्कुल. जो टेलीपोर्टेशन आपने मूवीज में देखा होगा, स्टार ट्रैक, टेलीपोर्टेशन, नारद मुनि यहाँ से गायब हुए, वहां पे अपीयर हो गए. ओके. वो एग्जैक्टली एंटेंगलमेंट से रिलेटेड है. तो आई थिंक नारद मुनि वाज एबल टू डू एंटेंगलमेंट ऑन हिमसेल्फ. I mean, हाँ, अगर हमने अब आज की भाषा में उसको समझना है तो हम ये बोल सकते हैं. बाकी वो कैसे करते थे वो उनको पता होगा, बट मे बी. एंटेंगलमेंट अगर बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एंटेंगलमेंट में लेट अस से आई हैव टू कॉइन्स नाउ, इंस्टेड ऑफ वन कॉइन आई हैव टू स्पिनिंग कॉइन्स. सो स्पिनिंग कॉइन मींस आई हैव टू क्वांटम कॉइन्स एंड दे आर समहाउ एंटेंगल्ड. एंटेंगल्ड वैसे हम कहते हैं ना, उलझे हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है. अब एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट कहता है कि अगर मैं इस पहले कॉइन में मेजरमेंट करती हूँ तो वो मुझे हेड या टेल में दिखेगा. जैसे ही मैंने अपने पहले कॉइन में मेजरमेंट करी, उसको डिस्टर्ब करके एक स्टेट में ले आई हेड्स में, जो मेरा दूसरा कॉइन है एंटेंगल्ड, तो ऑटोमेटिकली टेल्स में आ जाएगा. एंड दिस इज लाइक डेफिनेट इन द सेंस मैंने इस जुड़वा भाई को थप्पड़ मारा और ये जुड़वा भाई मर गया. एंड दिस इज डेफिनेट, लाइक आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. इफ आई एम टेम्परिंग, इफ आई एम प्लेइंग विद द फर्स्ट ट्विन, the second twin is automatically going to be affected. I don't have to do any measurement on it. मुझे इसके ऊपर कोई measurement नहीं करनी पड़ेगी tails लाने के लिए. तो ये entanglement का concept जो है वो बहुत widely use होता है quantum computers में. Entanglement के बिना quantum computers possible नहीं है. Okay. चलो इसके बारे में और जानेंगे. और fascinating बात बताइए कोई है इसके. I mean, okay, चलो इसको पहले summarize. I mean the thing is जो आपने चीजें बताई ये सारी मैजिकल चीजें हैं. बिल्कुल. अगर हम इस दुनिया में इसको ला सके तो, कि हम तो ऐसी चीजें दीवार में से निकल जाना, या एक चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पे होना, या ये कहना कि मैं दोनों चीजों में एग्जिस्ट करता हूं, मैं जिंदा भी हूं और मैं मरा हुआ भी हूं, ऑल दिस चीजें, ये सारी चीजें क्वांटम वर्ल्ड के पार्टिकल्स फॉलो कर रहे हैं, उनके यही रूल्स हैं. बट हम जो क्लासिकल वर्ल्ड में जो इस दुनिया में रहते हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़ी चीजें हैं, हम ये सब फॉलो नहीं करते. बट अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमारे पे ये ऐसा इफेक्ट होगा. मतलब अगर हम ये बोलना चाहें तो ये सब कुछ मैजिक लगता है, बट एक्चुअली में मैजिक नहीं है. दिस इज साइंस, जो कि बहुत छोटे लेवल के पार्टिकल्स फॉलो कर रहे हैं. उनका यूनिवर्स ही अलग तरह का है, अगर मैं सही समझा हूं ये तो. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे हैं. उनका यूनिवर्स, इट्स ब्यूटीफुल. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से क्वांटम फिजिक्स इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. I absolutely love it. And आपने एंड में बोला कि क्वांटम कंप्यूटर्स, जो आपने एंटेंगलमेंट की बात करी और टेलीपोर्टेशन की बात करी. आई मीन ये तो ऑब्वियसली स्टार ट्रेक वालों ने कब से ये सब चीजें करने की दिखा रहे हैं. और आपने बोला कि जो क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड हैं. सो हमें थोड़ा सा बताइए कि क्वांटम कंप्यूटर के बारे में. अब आई मीन जो हमारा मेन टॉपिक है कि क्वांटम के बारे में तो आपने बताया, सो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में हमें थोड़ी सी ब्रीफ सी एक कोई चीज बताइए थोड़ा सा. होता क्या है कंप्यूटर? एक्चुअली जो कंप्यूटर्स क्वांटम लॉज को यूज करके बने हैं वो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, आई वुड से. लाइक वेरी इजी सेंस. जो कंप्यूटर होगा वो आफ्टर ऑल होगा तो एक बड़ा पार्टिकल, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, ऐसा ही चीज होगी. पर उसके जो वो फिजिक्स फॉलो करेगा, आप ये बोल रहे हो कि वो क्वांटम के उनके जो ब्लॉक्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी मुझे स्लाइड शेयर करना चाहूँ मैं. एक स्लाइड शेयर करना. डेफिनेटली आप जी, क्योंकि ये सब, हाँ, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी जहाँ मैं समझा सकूं कि एक्चुअली ये क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं दिखने में छोटे नहीं होंगे. अगर आप इमेजिन करें कि आप एटम पे कुछ कर रहे हैं और वही आपका क्वांटम कंप्यूटर है. मतलब कंप्यूटर हमारे ही साइज का है, बट वो रूल्स जो है वो क्वांटम की दुनिया के फॉलो कर रहा है. और जो इसलिए उसको हम क्वांटम कंप्यूटर बोल रहे हैं. बिल्डिंग ब्लॉक है जो उसके, हाँ जी, वो ये स्मॉल एटम्स या आयंस या इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स हैं. उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है. तो मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी
maybe using some slides that will be more helpful. So, okay. अच्छा, तो ये तो है कि अगर मतलब आप किसी ने क्वांटम कंप्यूटर बनाना हो तो उसको क्या चाहिए, ये वही बात होगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्लासिकल। ये तो क्लासिकल कंप्यूटर, ये क्लासिकल कंप्यूटर, तो पहले क्लासिकल कंप्यूटर शायद हमें समझने की जरूरत है। डेफिनेटली डेफिनेटली। क्लासिकल कंप्यूटर्स जैसे हमने बात करी, उनके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना, लेगोज है, लेगोज से हम घर बना रहे हैं बच्चे, वो जो लेगोज है उनके, वो ये बिट्स, वी कॉल देम एज बिट्स। एवरीबॉडी, लाइक आई थिंक at this age, even a 5th standard student, he knows that these are the basic building blocks of these computers. So bits क्या है, वही head और tail है हमारे। So head means 0 and tail means 1. So current on and current off, something like that. तो जो हमारे computers हैं आजकल के क्लासिकल कंप्यूटर्स, वो इन 0 और 1 की भाषा को समझते हैं। They don't understand A, B, C, D or 1, 2, 3, 4. So if I am trying to communicate letter A to computer, I would have to communicate it in terms of these zeros and ones, right? So the building blocks are these zeros and ones, which are like current on, current off, or head or tail. मुझे मतलब किसी को ये तो चाहे ना पता हो कि वो बिट क्या है, पर अब सबको इतना पता है कि गीगाबाइट्स क्या हैं और किलोबाइट्स क्या हैं कि उनके बिना तो दुनिया नहीं चलती है। बट ये बात ये है कि अल्टीमेटली वो ये है, एक बिट से 8 बिट से एक बाइट बनेगा, और फिर बाइट से आगे किलोबाइट बनेगा, और किलोबाइट से आगे मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट्स, और जो कि हमें रिलायंस वाले और एयरटेल वाले सप्लाई करते हैं। I mean, not exactly, वो सप्लाई करने के लिए पहले उन्हें हमें बिट्स देनी पड़ती है। बिट्स देनी पड़ती है। हाँ, तो मैं इसको बिट्स को बस सिंपल भाषा में यही बोलती हूँ, हेड या टेल। So for me, head is like 0 and tail is like 1. Okay. जो क्वांटम कंप्यूटर्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको हम क्वांटम बिट्स कहते हैं, which in short form, like we love to give big names to everyone, we call them as qubits. These qubits again are the superposed states of zeros and ones, superposed states of head and tail, as I said earlier. Okay. And when I talk about these states, I don't talk about के head है या tail है. I talk about some probability that it is in head, some probability that it is in tail. Okay. And mathematically, as I said, these spinning points are represented as psi, and these head and tails are written as zeros and ones in fancy terminology. और फिर probabilities को भी हम like alpha, betas and also. So for a technical person, I would say the building blocks for quantum computers, these qubits, they are represented as a state psi, which exists in both superposition of 0 and 1. This is what I say. So superposition एक किस्म का, आप simple भाषा में बोले तो it's like a mixture. दो चीजों का mixture. आप बोलिए 0 state का और 1 state का. Actually, बिल्कुल technical terms में mixture is very different from superposition. Yes. Superposition would actually mean some probability of one state. For example, let us say मेरे पास एक spin है, electron spin. सब पता है सबको almost कि spin क्या होती है, up spin या down spin, right? This is what we say. This is a perfect example of a qubit. We can use electron spins आप बोल रहे हैं जो qubits. इलेक्ट्रॉन, जो हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसका उसके घूमने का डायरेक्शन, मतलब बहुत सिंपल भाषा में अगर क्लासिकल तरीके से समझना हो कि इलेक्ट्रॉन्स या तो अपने आसपास क्लॉकवाइज घूमता है या अपने आसपास अर्थ की तरह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो एक ऊपर और एक नीचे. ओके. बहुत लोग हमसे खुश नहीं होंगे अगर ये सुनेंगे. नहीं, आई नो, बट बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, तो हमें वो इम्पोर्टेंट है. जो खुश हैं वो तो आई मीन आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी. तो ये स्पिन जो है एक्चुअली हम एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ क्यूबिट, आई वुड से. ओके. हम कह सकते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो 0 स्टेट है, और जो क्लॉकवाइज घूम रहा है स्पिनिंग इज 1 स्टेट. एंड देन व्हेन यू हैव अ स्पिन, you always say it is a superposition of up and down spin until unless you do measurement on it. So जो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन है वो दोनों चीजों में है, या तो क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, वो दोनों में है, और कितना कितना है वो सुपरपोजिशन स्टेट है. कुछ एक में ज्यादा हो सकता है, एक में कम हो सकता है, या बिल्कुल बिल्कुल. जी, आपने उसको एक को एक क्यूबिट बना दिया और दूसरे को दूसरा क्यूबिट बना दिया. अब ये जो सुपरपोजिशन है ना, मैंने अभी आपको जो कहा, इट मेक्स दीस क्वांटम कंप्यूटर्स वेरी पावरफुल. आई विल टेल यू, वन ऑफ द you can say power of these computers is that they have tremendous storage capability. Example is, let us first understand the classical picture. मेरे पास classical bit है एक, मैं उसमें एक information store कर सकती हूँ, या मैं उसमें 0 लिख सकती हूँ या मैं 1 लिख सकती हूँ, right?
if I have a 2-bit register, I would be able to store 2 information in that 2-bit. So I will be either able to store 0, 0, 0, 1 and so on, right? 2 bits, 2 information. 3 bits, 3 information. तो linearly चल रहा है कि जैसे जैसे एक bit increase कर रहे हैं, मेरी information storage capacity एक करके linearly increase कर रही है. ठीक है. So quantum computers है, since यहाँ पर हम superposition की बात करते हैं, जो मेरी एक qubit है, this psi, वो superposition of 0 and 1 में exist करती है. मेरे पास कैसे freedom है कि मैं अपनी information 2 जगह पे स्टोर कर सकती हूँ in these alphas and betas. So okay. 1 qubit, but information stored in 2 amplitudes. Okay. 2 qubit, information stored in these 4 amplitudes. So 2 times. 3 qubit, information stored in 8 amplitudes, and so on. And this makes these computers very powerful. तो अगर मेरे पास 10 qubit होगी तो मैं 2 raised to power 10. So it's like exponentially. इतने एम्पलीट्यूड्स हो जाएंगे. कोरोना वाला जो कर्व बोलते हैं वैसा कर्व बन गया बेसिकली. बिल्कुल एक्सपोनेंशियल कर्व बन गया है किस्म का. और बट ई की बजाय आपका 2 है यहाँ पे. दैट इज द ओनली डिफरेंस. जी, यहाँ पे दो के स्टेप में ऊपर बढ़ रहा है. सो बेसिकली ये है कि सेम क्यूबिट से आप ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मोर इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर में अगर आपके पास उतने नंबर के बिट्स हैं तो आप बहुत कम इंफॉर्मेशन सेव कर पाओगे. Perfect. That is the thing that I understood. Okay. तो हमारे ये जो क्यूबिट्स हैं बेसिकली बने किस चीज से? मतलब आप जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ले लिया, सो हम कंप्यूटर में एक्चुअली में वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द क्वांटम कंप्यूटर. Yes. Okay. We are using atoms. We are using molecules. We are using ions. Okay. For these, so the basic unit जो क्यूबिट की बात करें वो एक एटम हो गया. 2 क्यूबिट है तो 2 एटम हो गया, and so on. तो अब मैं एक और एस्पेक्ट बताना चाहती हूँ जो सुपरपोजिशन से अगेन रिलेटेड है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत पावरफुल बनाता है. इट्स कॉल्ड क्वांटम पैरेललिज्म. ओके. तो अभी अगर मान लीजिए क्लासिकल वर्ल्ड है, आपको कुछ ऑपरेशन करना है, आप कैसे करेंगे? 1 by 1 करेंगे, राइट? क्वांटम वर्ल्ड में ये ऑपरेशन साइमल्टेनियसली अलाउड होता है बिकॉज योर स्टेट्स आर इन सुपरपोज्ड स्टेट. सो लेट अस give one very simple example. Let us say my aim is to push a number of people who are standing in a queue. Okay. So classical picture क्या होगी? एक आएगा, I'll push. The second person is going to come, I'll push, and so on, right? So it's the operation is happening in serial order. But quantum parallelism is, since these states, these atoms are superposed, I would say these atoms are superposed. What I can do is मैं फट्टा लगा के इकट्ठे धक्का मार सकती हूँ. So this is parallelism, like number of operations tremendously reduce. तो मतलब क्योंकि वो सारे एक दूसरे के साथ entangled हैं, ये बोल सकते हैं? बिल्कुल. Not exactly. नहीं, not entangled, superposed. Not entangled, superposed. उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं उन्होंने एक दूसरे के, तो इसलिए मैं उनको इकट्ठे धक्का दे सकती हूँ. तो मुझे एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो क्लासिकल वर्ल्ड में मुझे सीरियल ऑर्डर में एक एक करके करना पड़ रहा था. तो इसलिए फास्टर भी है, स्टोरेज कैपेसिटी है उनकी, ये बहुत फास्ट है. एक प्रॉब्लम है पर इसमें. Okay. प्रॉब्लम क्या है? दिस सुपरपोजिशन इट लूजेस व्हेन वी डू मेजरमेंट. जब मैंने बताया था ना, आप अगर हमने उसको देख लिया तो हमारा वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ये सुपरपोजिशन खत्म. दिस इज वेयर एल्गोरिथम्स कम, क्वांटम एल्गोरिथम. सो आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज हियर एंड आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि ये जो क्वांटम एल्गोरिथम है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट है क्वांटम कंप्यूटेशन का. क्वांटम कंप्यूटर्स है हार्डवेयर बिल्डअप करना. एल्गोरिथम्स आती हैं जो हम करना चाहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर टाइप की, क्या करना चाहते हैं. दिस इज अ डिफरेंट एरिया वेयर दे कैन ऑप्ट फॉर करियर. But how this quantum algorithm actually come into picture and how they're used in these quantum computation, I would tell. Let us say I have a directory, phone directory. और मेरे पास जो उसके contacts है वो alphabetical order में नहीं है. मुझे आपका नंबर ढूंढना है. I want to find the number corresponding to Venus. Okay. So in classical world, what I'll do is I'll read one name, right? And then in the end, I'll find that, oh, this is Venus' name and this is the number corresponding to it. But since in quantum world, this quantum parallelism is allowed, right? Okay. What I can do is I can look at the entire directory in one go. Okay. But when I read out your name, when I try to read out, देख तो लिया मैंने. My name moves to someplace else or disappears. Yeah, when I read out,
माई रिजल्ट इज प्रोबेबिलिस्टिक, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मुझे आपका नाम मिल जाएगा, दिख जाएगा, पर कुछ प्रोबेबिलिटी है भी कि मुझे गलत नाम भी दिख सकता है. ओके. तो उधर क्वांटम एल्गोरिथम्स दे कम इनटू पिक्चर. वी नीड टू डिवाइस एल्गोरिथम्स सच दैट जो मैं रीड आउट कर रही हूँ वो ऐसा करूँ कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट, मुझे वीनस का ही नाम दिखाई दे, लाइक विद 90% प्रोबेबिलिटी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो ये तो बहुत एक, आई मीन इट्स अ वेरी बिग लिमिटेशन, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस टाइम पे क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो एप्लीकेशन में हैं और बन रहे हैं. सो क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा हमें मैनेज करना पड़ेगा, सो मैं आई विल आस्क यू कि हमें थोड़ा सा बताइए कि करंट स्टेट है क्या, मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स जैसे कि आपने बताया कि थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं, इवन प्रैक्टिकली आल्सो दे आर पॉसिबल एंड पीपल आर मेकिंग देम. सो करंट स्टेट है क्या? हमारे घरों में हम अभी भी क्लासिकल यूज कर रहे हैं, क्या हम आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करने वाले हैं, और अगर हमें करने भी हैं तो क्यों, मतलब उससे फायदा क्या होगा और कैसे, किस तरह से, थोड़ा सा ये बताइए कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी स्टेटस क्या है और आगे क्या होगा. बिल्कुल. एक चीज तो मैं करेक्शन करूंगी कि विनस, ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं दे आर डेफिनेटली नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू आवर क्लासिकल कंप्यूटर्स. ओके. दे कैन नेवर, लाइक नॉट इन दिस सेंचुरी, आई थिंक मे बी फ्यूचर किसी ने नहीं देखा. नहीं, बन नहीं पाएंगे या नहीं, फायदा सब्स्टिट्यूट कोई नहीं नहीं कर है. पाएंगे. अच्छा, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. जो क्लासिकल, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 1+1 करना है तो आप एक कैलकुलेटर यूज करेंगे कि कंप्यूटर यूज करेंगे, ऑब्वियसली, राइट? वो तो मैं वैसे खुद ही कर लूंगा सबसे पहले तो, बट आई अंडरस्टूड योर पॉइंट. Yeah. So they cannot substitute, at least not in this century, they cannot substitute classical computers. Quantum computers are being used for some different purpose. और मैं जो उनकी अभी बेसिक मैं बोलूंगी, क्वांटम कंप्यूटर हमारी जरूरत है, मतलब मजबूरी है. क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लासिकल वर्ल्ड का कंप्यूटर है वो इस स्टेज पे आ गया कि हम उसे और छोटा नहीं कर सकते. They have reached their limits. So if we want to further reduce it, we are already going into this atomic regime. But जैसे आपने कहा कि इनकी possible applications क्या हैं, तो I have already highlighted such weird facts about quantum computers which actually make these quantum computers very powerful. And I think after artificial intelligence, quantum computers are one of the most emerging technologies. उनका एक तो यूज है इस ऑप्टिमाइजेशन में, जो फाइनेंस सेक्टर में यूज होता है, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में यूज होता है. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू सिलेक्ट बेस्ट एसेट्स टू इन्वेस्ट इन विद मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम रिटर्न्स. सो दीस आर कॉल्ड एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स व्हिच आर क्लासिकली वेरी डिफिकल्ट टू डू. ओके. And we can solve them मतलब on ये है कि quantum computers. बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए हम इनको यूज करेंगे, ये जो घरेलू हमारा रेगुलर यूज है उसके लिए शायद इसकी जरूरत ना पड़े. बट क्या मैं इस स्टेटमेंट को उससे कंपेयर कर सकता हूँ कि किसी जमाने में किसी ने बोला था कि ऑल द ह्यूमन काइंड वुड नीड इज अराउंड नॉट मोर देन 100 MB ऑफ डेटा एवर, बट बाद में हुआ क्या वो हम देख रहे हैं. 100 MB अगर हमें कोई आज डेटा दे दे तो हम मजाक भी नहीं करेंगे. आई मीन विल गेट एंग्री. You never know. You never know. आई मीन इज इट पॉसिबल कि कल को हमारे स्मार्टफोन की बजाय हमारे हाथ में क्वांटम फोन हो? And I don't know what we will do with that, but yeah, but you never know, you cannot predict. So अभी कोई जैसे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन क्वांटम कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर रही हो, कोई ऐसा? बहुत कंपनीज हैं इंटरनेशनली. there are companies, IBM, Microsoft, Google, have opened up clear career pathways, not only for researchers but for developers and engineers as well. मतलब बहुत ऑप्शंस है. आप आर्किटेक्ट में जा सकते हैं कंप्यूटर के बनाना कैसे है, एल्गोरिथम्स बिल्डअप में जा सकते हैं. फिर एक है एरर करेक्शन. रिसर्चर्स होते हैं जो देखते हैं कि एक बार हमारा कंप्यूटर बन गया, एल्गोरिथम्स हमने लगा दी, अब कम्युनिकेट कैसे करेंगे हम अपनी इंफॉर्मेशन, तो वहां पर वो आते हैं. एंड देन देयर आर समथिंग कॉल्ड क्वांटम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जहाँ पे ये मुझे लगता है जो बीटेक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, दे कैन बी वेरी हेल्पफुल, दे हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर. तो आपके पास कोई ऐसी फोटो या कुछ ऐसा मटेरियल है जैसे दिखा सकते हैं कि कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर दिखता कैसे है, इफ यू कैन? आई मीन आई थिंक कि हमने जब बातचीत करी थी आप बोले थे कि आई विल शो द ऑडियंस. डेफिनेटली थोड़ा सा, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर पीपल विल बी आई मीन वेटिंग कि हम देखें तो सही. आई मीन ऑब्वियसली इट विल बी लाइक अ नॉर्मल मशीन, बट स्टिल एक अब इतनी बात कर ली है तो देख ही ले. सो दिस इज हाउ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर look like, quantum computer. So that is Google's CEO, no? Yes. Okay. This is Google's quantum computer. Last year they had announced their supremacy.
and they said that they had made a 54 qubit quantum computer, which was like a huge breakthrough. So 54 qubit वही 2 raised to power 54 वाला ही फंडा लगेगा इस पे या कैसे? नहीं, इसमें नहीं 54 qubits है, and the information it can store is 2 raised to power 54. 54, okay. Yes. And this computer here is ये I think ये है इनका IBM का. So what interesting I would like to tell to my audience is that IBM के पास 3 quantum computers हैं इस समय, और ये सब जो है वो इन्होंने available किया है web पे. They're freely available. You can access them. So if they want, yeah, I can provide the details. ओके चलिए, आई मीन बहुत सारे सवाल हैं, मे बी हम क्वेश्चन आंसर्स में और इनको एड्रेस कर लेंगे, तो हम जो पूरा हमारी बातचीत है एक बार उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं. सो सबसे पहले तो ये है कि आप खुद जैसे आपने बताया कि एटॉमिक फिजिक्स में आपने पीएचडी करी है एंड यू हैव वर्कड इन दिस फील्ड, सो यू आर स्लोली एज यू सेड कि आप धीरे धीरे क्वांटम कंप्यूटिंग में या रिसर्च करना चाहते हो. आप कैसे, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इन दैट, and what is basically your research and how you ended up doing that research and why do you want to do that research? थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ तरीके से बच्चों को बताइए, and they would be fascinated to know कि हमारे यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग की रिसर्च की जा रही है या की जाने वाली है. तो एक्चुअली हम तो एक ऑफर भी करते हैं, कोर्स भी ऑफर करते हैं एट आवर यूनिवर्सिटी, बेसिकली ऑन क्वांटम कंप्यूटर्स. But I initially started doing this during my PhD. Initial, I think 6-7 months I devoted to this quantum computation. And since I'm an atomic physicist, we were mostly working on quantum computers using atoms. तो जैसे मैंने बताया कि quantum computers आप different systems को लेकर बना सकते हैं, atoms, ions, molecules. मेरा जो main area है वो है using these atoms to build quantum computers. And my work is not related to the theoretical aspect like these error correction codes or algorithms. My is more towards the architecture, कि बनाना कैसे है उसमें. तो हम लोग करते हैं जो quantum computation using something called Rydberg atoms, which are very like atoms which are in very high excited से बड़े atoms के हैं, बड़े size के atoms हैं, तो उनको लेकर करते हैं. अब जो करंट चैलेंजेस हैं जो हम एड्रेस कर रहे हैं वो है कि हम इनमें गेट्स कैसे बनाएं. जो मेन प्रॉब्लम्स है दो, the entire this scientific community in working in this field they are facing is, first is how to build these gates, because gates के बिना कोई कंप्यूटर नहीं बन सकता. Okay. और secondly, since these quantum particles which we are working with, these atoms and spins, they are so fragile, they are so small कि थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते ना तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट व्हिच वी आर ट्राइंग टू लुक एट. ओके दैट्स इंटरेस्टिंग. एंड अभी जो हमारा जिसमें जो मेन मकसद जिससे हमने ये सेशन शुरू किया है, सो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स या आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इफ दे वांट टू गो इनटू दिस फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कि आप गए हो, so what is the path they should follow? I mean, किस तरह का career path, what kind of qualifications are required, what kind of degrees are required, what kind of technical skills are required to get into the field of quantum computing, building a quantum computer or even just working in quantum physics, let's say. तो कोई भी science major, I would say, maybe engineering background students, they can opt for this as higher education, higher study, like physics major जिनको क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी नॉलेज है, मैथ्स मेजर जो प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा, दे आर वेल एक्वेंटेड विद दीज कांसेप्ट्स, दे कैन एक्चुअली गो इनटू दिस फील्ड. कंप्यूटर साइंटिस्ट की बहुत डिमांड है इस फील्ड में. ओके, सो जो बीटेक कंप्यूटर साइंसेज हैं, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन थ्योरी की इनको नॉलेज है इन टॉपिक्स की, दे कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज इन क्वांटम कंप्यूटर. इवन केमिस्ट्स, बिकॉज केमिस्ट्री पीपल दे फिट इनटू एवरी एरिया, राइट. आपने ऐसे बोला इवन केमिस्ट कैन डू इट, हमें ऐसी मतलब खुशी भी हो रही है और थोड़ा तरस सा भी आ रहा है अपने आप में. आई मीन आई एम अ केमिस्ट बाय ट्रेनिंग, सो बट इट्स ओके. आई मीन तो एक वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस जो है ना क्वांटम कंप्यूटर के, वो सिमुलेट कर सकता है केमिस्ट्री के बॉन्डिंग्स एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स and atomic systems. So all these quantum, they can simulate it on quantum computers. So chemistry की तो बहुत डिमांड है इसमें. Chemistry people are like so basically degree in basic sciences like physics or mathematics is very useful, and then getting into मतलब masters करना है, उसके बाद getting into the field of atomic physics or not only atomic physics. If you want to do like quantum computation using NMR, then probably you need
some knowledge of that. That's why I said that chemistry people are high in demand in this field as well. Okay, तो that NMR is लेके good. भी क्वांटम कंप्यूटर्स बनते हैं. ओके ओके. एंड अगर मैं बात करूं कि जैसे इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूशंस या जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग पे रिसर्च हो रही है या कंपनीज जहाँ पे इसकी रिसर्च हो रही है, व्हाट आई मीन आप अगर थोड़ा सा हमें बताएं कौन सी इंस्टीट्यूशंस आर गुड. इंडिया का थोड़ा सा आई वुड से इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड, frankly Okay. speaking. But efforts have been started. Like in the last 2 years, we have started putting efforts in this field. I would tell that US and China are the like leaders in the global race for this quantum technology. They have been investing huge amount of money. So in India, DST has recently launched a program called Quantum Science and Technology Program, Quantum Information Science and Technology Program, QUEST. It is called QUEST. जहाँ पे they have invested 80 crores for this research funding, and I think more than 50 research labs have been given funding. So वो research labs में काम हो रहा है. Some of those research labs are IISER Mohali, JP. तो वो एप्लीकेशन पर्पस से है, क्वांटम कंप्यूटर बिल्ड करने के लिए है या थ्योरी डेवलप करने के लिए, या बिकॉज इंडिया जनरली जो भी रिसर्च होती है मेजॉरिटी हर एक फील्ड में इट इज लाइक फोकस्ड ऑन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स. आई मीन वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली वर्किंग इनटू डेवलपिंग थिंग्स. सो जो ये जो एफर्ट है DST का, so is it towards building a quantum computer or technology related to that, or just doing research in that field? It's just theoretical research, or I think R&D जो various groups में हो रही है, it's only good for building prototypes. And as I totally agree to you that if we actually want to implement these quantum computers in real world, then industry partnership is very crucial. So like India's tech giants like Wipro and Infosys, they should start stepping in and they should start investing in it. And if we do that, I think we'll quickly pick up the pace. और अगर हम इंस्टीट्यूट जो बच्चे यहाँ इस चीज में आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, लेट्स से डॉक्टरेट या मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनको कौन से मतलब व्हाट आर द लाइक द फेमस इंस्टीट्यूट्स इन कंट्री व्हिच आर लाइक फेमस फॉर दिस रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम फिजिक्स, theoretical physics? Theoretical physics, एक तो TIFR, okay, one of the best I would say. उनके पास तो एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज भी बहुत है, तो सिर्फ आप थ्योरी नहीं करेंगे, आप एक्सपेरिमेंटल से भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं. IIT मद्रास, DRDO ने IIT बॉम्बे में आई थिंक एक लैब खोली है which is exclusively for these quantum technology, dedicated to quantum technology. And then IISER Mohali, they have been given this DRDO funding. JP Institute Noida. So there are a number of institutes who are mostly working on theory and very less on experimental aspect. But I think experimental जब तक industry नहीं आती, there's only one startup, private startup. It's called QNew Labs. It's based in Bangalore. But obviously we cannot compete with IBM until unless these Infosys and Wipro this. So आपने IBM की बात करी, तो उसमें बात करें. So how much like these big giants like IBM or Google or Microsoft, they are investing in this area, and what is the job scenario or these kind of things worldwide for a person who is trained in quantum physics or quantum computing? The total private, I won't be able to categorize कि कितना Google का है कितना है, but private investment over the past 2 years has been like more than 450 millions. This is just private. जो countries है वो खुद इन्वेस्ट करे. जैसे यूएस के जो नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव प्रोग्राम है, दे आर इन्वेस्टिंग 1.2 बिलियन इन नेक्स्ट 5 years. चाइना हैज इन्वेस्टेड 10 बिलियन टू बिल्ड अ नेशनल लैबोरेटरी. चाइना की तो आप बात मत करिए, चाइना से आजकल सब बड़े खफा हैं, बट इट्स ओके. Obviously they are playing very smartly right now, and they are actually moving in the right direction. Yeah, they have made tremendous, and this is the actually need of our जो ये क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, they are a big threat to our IT security, I would tell you. And every country is worrying. It's in a race to build up a quantum computer कि वो अपनी IT security को build up कर सके. इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आजकल. So अगर हम ये सारा कुछ देखें, इसको समराइज करें, तो there is a big scope for a person who will get trained in, let's say, quantum physics or even atomic physics or anything related to that, because these industries, they will be very happy to pick them up. I mean, definitely in they India, need very trained people.
स्पेशली इन इंडिया आई वुड से। जब ये DRDO ने इनिशिएटिव लिया है अपनी फंडिंग का, उसके बाद तो पोस्ट ये PhDs की इतनी डिमांड आ रही है इस फील्ड में, because these labs have been given funds. I think half of the funds they have already received, so they are looking for people, they're filling these positions. Okay. And so what I will say now is, because we also planned कि हम थोड़ा सा quantum physics या quantum computer के पीछे जो science है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, but the time is very limited, and I'm pretty sure maybe somebody will ask the questions and we can answer, you can explain those things in the question answer session, because there are many people who are from the physics department, I guess, from the physics background, and they will be happy to listen and ask you these questions. So but अगर मैं ओवरऑल बोलूं, जो डिस्कशन मैं इन जनरल करना चाहता था, आई थिंक आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज सॉल्व्ड टुडे आफ्टर टॉकिंग टू यू, एंड कि बेसिकली क्वांटम वर्ल्ड है क्या, और उसकी क्वांटम कंप्यूटर बनाने में जो बाद में आती है एप्लीकेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लासिकल कंप्यूटर, व्हाई इट इज पावरफुल, व्हाट आर द पॉसिबल एप्लीकेशंस, व्हाट आर द करंट सिनेरियो, एंड व्हाट इज द फ्यूचर, कहाँ पे उसमें कैसे जाना चाहिए, किस तरह की आगे अपॉर्चुनिटीज उसमें आने वाली है. आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, एंड थैंक्स टू यू इट हैज बीन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इन एवरी एस्पेक्ट. And I would now request, first of all, the moderator to put on board if somebody has a question. The audience is requested to raise their hands, and if they have any question for Dr. Bindia which they want to ask her about quantum computers or quantum physics or anything which they have heard just now, please raise your hands and we can ask them. So okay, we have on screen Vivek Veer. Please Vivek Veer, introduce yourself and ask your question. Oh, we have a very young chap. This is going to be interesting. Hello. I'm Vivek Veer Singh and I am 10 years old. Uh-huh. We all know that this there are quantum particles. But Yes. but from where they have derived their name and from where they have came to this world. अच्छा, हाँ जी बिंदिया जी बताइए. हाँ विवेक, I know this child. He is a very, I recommended him to attend this session. He is very keen in science. तो विवेक, क्वेश्चन मेरा मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो है कि इनके नाम कहाँ से आए हैं, कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्यों कहा, प्रोटॉन को प्रोटॉन क्यों कहा, ये आपका क्वेश्चन है? नहीं, क्या है क्वेश्चन? ये जो मुझे समझ आया, ये पूछना चाहते हैं कि क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं ये आए कहाँ से हैं. एक तो यही क्वेश्चन था इनका. ये तो इस पे फिर हमें एस्ट्रो में और जाना इनको चाहिए. क्वांटम क्यों बोलते हैं, क्वांटम के शब्द का जो ओरिजिन है ये भी, कि व्हाई आर दे कॉल्ड क्वांटम मींस पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स, फिक्स, नॉट कंटीन्यूअस. तो वहां से डिराइव हुआ है क्वांटम वर्ड. जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, यू कैन से फोटॉन्स जैसे हम कहते हैं, पैकेट्स में आते हैं, वहां से उनका नाम डिराइव हुआ है दुबे. और आए कहाँ से? दिस इज लाइक एवोल्यूशन थ्योरी से आप बता सकते कि जो हमारे पूरा यूनिवर्स जो बना है कहाँ से बना है, एटम से ही बना है. एक्चुअली जो हम सब कुछ चीजें देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो वो एटम से बनी है. आप एटम से बने हो, मैं एटम से बनी हूँ, हर चीज एटम से बनी है. तो इस क्वेश्चन का विवेक वीर आंसर करना बहुत मुश्किल है बेटा, कि चीजें आई कहाँ से. एक्चुअली मैं बताऊं तो फ्रैंकली बहुत मुश्किल है. आई डोंट थिंक सो. आई मीन इट विल बी राइट टू आंसर. आई मीन थोड़ा आप और maybe you will grow up and answer this question, that would be very interesting. But क्वांटम का जैसे विंध्या जी ने बोला, यही है कि जैसे लाइट है, आपको दिखती है कि लाइट एक लाइन में आ रही है. इट इज नॉट लाइक दैट. इन क्वांटम वी से दैट कि वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, वो कोई एक लाइन नहीं है. जैसे हम छोटे होते वो ड्राइंग बनाते हैं कि सूरज से एक किरण आ रही है, वो किरण एक लाइन नहीं है, वो बेसिकली एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं. सो दैट इज हाउ आई कैन एक्सप्लेन कि उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्वांटा बोलते हैं. कुछ भी चीज जो टूटी हुई है उसको क्वांटम बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नितिन मित्तल. प्लीज पुट हिम ऑन स्क्रीन, मॉडरेटर प्लीज. हाँ जी नीतीश. हाँ जी नीतीश, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. गुड इवनिंग. I am a student of MSc Chemistry, Guru Nanak Dev University. Okay. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब क्वांटम का कभी कभी हम सुनते हैं ना फोर्थ डिमेंशन के बारे में, या क्वांटम का टाइम के साथ क्या लिंक है, या मतलब कि डिमेंशंस के क्या लिंक है इसका? क्वांटम का डिमेंशन के साथ क्या लिंक है? नहीं, मुझे नहीं पता. नहीं, सॉरी, मुझे शायद क्वेश्चन नहीं समझ आया.
I am not able to relate time with quantum. मतलब टाइम को हम कि रिलेटिविटी से जरूर कनेक्ट करते हैं, टाइम को हम रिलेटिविटी से जरूर कनेक्ट करते हैं, बट टाइम को हम क्वांटम से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन से कैसे कनेक्ट करेंगे? आई डोंट थिंक इट्स एनी डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी डू इट इन क्लासिकल. आई थिंक नितिश ये सारी चीजें जो है, क्वांटम का भी जो डिस्कशन ओरिजिन जिस टाइम पे हुआ उसी टाइम पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी हुआ, तो जनरली ये सारा कुछ लोग मिक्स कर देते हैं. बट एज बिंदिया जी सेइंग, क्वांटम जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो तुम बोल रहे हो कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम एंड ऑल दोस थिंग्स. उसका इसके साथ डायरेक्टली, मतलब मैं तो वैसे भी केमिस्ट हूँ, मुझे तो पता नहीं, बाकी बिंदिया जी. क्वांटम का जो टाइम डोमेन है वो एग्जैक्टली क्लासिकल, हम जब टाइम एवोल्यूशन ऑफ क्वांटम सिस्टम्स पढ़ते हैं, हम टाइम वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे हम अभी करते हैं, माइक्रोसेकंड्स, मिलीसेकंड्स. मतलब कि आपने बताया पैरेललिज्म के बारे में, मतलब पैरेलल यूनिवर्स के बारे में. तो वो मतलब कि उसे हम थोड़े से मतलब टाइम के साथ नहीं लिंक करते हुए. नहीं, दैट इज मल्टीवर्स कंसेप्ट, दैट इज इन एस्ट्रो, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. Parallel universe, I think I might be wrong. Parallel universe is a different concept than that multiverse concept. एक YouTube पर वीडियो देखी थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि टोटल मतलब कि 11 डायमेंशंस होते हैं, तो मतलब कि उन्होंने उसी में पैरेलल यूनिवर्स का डिस्कशन किया था क्वांटम से रिलेटेड. उन्होंने स्पेस टाइम कंटिन्यूम की बात की होगी. ओके मैम. हाँ, वो स्पेस टाइम. पर जो तुम बोल रहे हो नितिश, बात वही है कि मोस्टली हो क्या रहा है कि जो हमारी जितनी भी साइंस-फाई मूवीज हैं, सारा कुछ है, वो ये सब चीजें हमें ऐसे पका के हमें प्लेट पे दे देते हैं. मल्टी यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स ये हो गया, और स्पेस टाइम कंटिन्यूम बोल दिया, और ऐसे कर दिया, ग्रेविटी बढ़ गई, टाइम धीरे हो गया, वो हो गया. But as she is saying, all these things might be not related to each other, but I mean, yeah. As far as I know, no. Multiverse is different concept than parallel universe. Okay. So multiverse is related to space-time continuum and all things. जैसे हमारी बॉडी भी मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बनी हुई है सारी, है ना? तो क्या हम जैसे हमने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए हैं, तो क्या हम अपनी बॉडी पर भी कोई ऐसी चेंज कर सकते हैं? कहते हैं, वही कहते हैं कि मैं टेलीपोर्ट करना चाहती हूँ. So if you remember last year China was in news. They had quantum teleported photons from satellite, like how many thousands of kilometers, to a station in Earth. They had teleported it. वहां से गायब होकर यहाँ पे दिखा, ऐसे कुछ concept था. So this is true. We are doing it for quantum. But हाँ, interesting question है कि क्या मैं teleport हो सकती हूँ? That is something. यहाँ टेलीपोर्ट हो, या फिर हम भी, हमारा भी साइज छोटा हो जाए, या कुछ ऐसा कुछ, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ना एंट मूवी देख के आए हैं. नहीं, वो टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट तो जो है कि जो मॉडरेटर ने मुझे याद कराया, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री मूवी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. वो तो बुक जो कितने सदियों पहले लिखी है. इंसान की फैसिनेशंस हैं, टेलीपोर्टेशन हो जाए तो मतलब इससे बढ़िया क्या है. जैसे देवता है, नारद मुनि का मैम ने एग्जांपल दिया था शुरू में, वो भी टेलीपोर्टेशन थी. अब वो पॉसिबल थ्योरेटिकली, व्हाट शी इज सेइंग इज फाइन. नहीं, थ्योरेटिकली भी शायद ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्वांटम रियल्म में इतने चले जाएं जो मूवीज में दिखाते हैं. वो एंटमैन एंड ऑल, आई हैव सीन दैट मूवीज. Perhaps you should also watch. हाँ, मैं उसमें यही दिखाया गया था, मतलब कि वो एटम्स के बीच में जो स्पेस होती है ना ऑर्बिटल्स में, तो उसे कम कर देते हैं वो. हाँ. There are many theoretical flaws in those science fiction movies. Many theoretical flaws, I would say. So theoretically, experimentally तो I don't think, but theoretically भी हमारे पास ऐसा कोई theory या concept नहीं है कि वो possible हो. Thanks, Nitish. I request the moderator to put 4198 on screen. Good evening. Good evening. Please introduce yourself and. My name is Rekha Sharma, and I am a student of MSc Physics in GNDU. मेरे एक्चुअली ना 2 क्वेश्चन हैं. फर्स्ट तो मैम आपने बताया था ना कि एक जैसे पार्टिकल है या कोई पर्सन है, वो वॉल को मतलब पार करके एक एंड से दूसरे एंड तक टनल करके चला जाता है. तो जैसे मतलब एक वॉल है, उसकी कोई ना कोई विड्थ तो होगी ना. तो मतलब वो वहां से टनल करके मतलब वो किसी और डायमेंशन में चला जाता है जब वो उसके इन बिटवीन है. नहीं. टनल करके, टनल मतलब टनल नहीं बना रहा, वो एक्चुअली छेद नहीं कर रहा है. हाँ, मतलब वो एक जगह से डिसअपियर होके प्रोबेबिलिटी है. सी, जब मैंने बोला था ना कि क्वांटम वर्ल्ड जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है. यू कैन नॉट, इट साउंड्स क्रेजी कि यहाँ से गायब हो गया और बॉल के बाहर दिख गया, हालांकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं थी
कि वो बॉल को क्रॉस कर सकता, but still there is a finite non-zero probability that you can spot that particle outside the room or outside the wall. And you can experimentally see that. मतलब करा है लोगों ने, experimentally ये किया है. Quantum tunneling जो है experimentally they have seen particle outside the box. Okay, and so मैं आपका नाम मैं फिर से दूँ, बट जो ये बोल रहे हैं कि आप ये समझिए कि रूल्स अलग हैं. आप उसको हमारी प्रॉब्लम क्या है इंसानों की, वी ऑलवेज नीड अ मॉडल टू अंडरस्टैंड समथिंग. हम उसको जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं उस तरह से समझना चाहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें वैसी हो रही हैं. सो वो जो टनलिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ आ जाए या बच्चों को समझ आ जाए तो हमने उसके लिए ऐसे बना दिया है कि चीज़ उसमें से निकल गई, आगे चली गई या ऐसा हो गया. बट इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट. जैसे वो इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, वो सब चीज़ें हैं. अब वो सारे मॉडल्स हैं ताकि हमें वो समझ आ जाए, हम हजम कर सकें. कई बातें वो हजम नहीं होती हैं बिना किसी मॉडल के. सो टनलिंग इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. मैं बिल्कुल यही कहने वाली थी विनस के जिन लोगों को क्वांटम फिजिक्स समझनी है, अगर वो इमेजिन करके अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे कभी नहीं कर पाएंगे. ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. अगर आपको क्वांटम फिजिक्स समझनी है तो आपको मैथमेटिकली समझनी पड़ेगी, और मैथमेटिकली में उसकी ब्यूटी दिखती है. इफ यू do it mathematically, you'll see, actually you'll understand the concept. It's not necessary to visualize everything in your head to understand it. और मैं ये भी थोड़ा सा यहाँ ऐड करूंगा कि वो थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम में या कह लो प्रॉब्लम भी ये हो रही है कि ड्यू टू अ लॉट ऑफ कंपटीशन बहुत सारी चीजें हायर क्लासेस की जो कि सिंपल तरीके से लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ानी चाहिए वो भी पढ़ाई जा रही हैं. लाइक एटम का स्ट्रक्चर तुम बचपन में बता देते हो कि ऐसे होता है, वो एक बार दिमाग में फिट हो जाता है, बाद में आके हायर क्लासेस में तुम्हें बताया जाता है बेटा ऐसे कुछ नहीं होता है, इट इज टोटली डिफरेंट. तो वो पहले वाले को अनलर्न करना और नए वाले को रीलर्न करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज द होल प्रॉब्लम. सो क्वांटम फिजिक्स को जब तुमने पहले उसकी फोटो बना दी क्लासिकल तरीके से, जो चीज वैसी है ही नहीं, तुमने एक बार फोटो बना दी, बाद में वो फोटो दिमाग से इरेज करके एक नई फोटो बनाना या फोटो नहीं बनाना, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस बना दिया तो वो पिक्चर इम्प्रिंट हो गई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन ऑर्बिट, व्हिच इज नॉट ट्रू. यस. एक्चुअली चैट में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया रविंद्र कुमार सिन्हा ने, दैट टनल डायोड इज अ रियल वर्किंग एग्जांपल ऑफ टनलिंग इफेक्ट. सो इट एक्चुअली हैपेंस. ही इज वेरी राइट. सो नाम बड़ा प्यारा सा है, टनलिंग इफेक्ट. वो लगता भी ऐसा ही है कि टनल बना के कोई बीच में से निकल गया, बट एक्चुअली में वो वैसा नहीं है एज शी इज सेइंग. एंड या आई मीन कई चीजों को हम क्लासिकली ड्रॉ तो करते हैं बट वो होता नहीं. मॉडरेटर, आई वुड रिक्वेस्ट पुट रिदम अरोड़ा, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ रेलेवेंट क्वेश्चन. प्लीज पुट रिदम अरोड़ा ऑन स्क्रीन. Good evening, ma'am and sir. Ma'am, I am the student of Guru Nanak Dev University Physics Department, first year student. मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो उनका टनलिंग इफेक्ट है ये पॉसिबल कैसे? मैम कोई तो कंडीशन होगी कि पार्टिकल टनल करके बाहर आ रहा है. मैम कोई तो मैथमेटिकली हाँ मुझे लगता है बच्चे ना हजम नहीं कर पा रहे. मतलब ऐसे समझ लो कि प्रोबेबिलिटी है, राइट? एक वेव है, प्रोबेबिलिटी है. सो देयर इज अ वेव. आई टेल यू, इट्स तुम्हें फिजिक्स पता है थोड़ी तो तुम्हें ये टर्मिनोलॉजी पता होगी. मेरे पास इफ आई से दिस देयर इज अ क्या कहते हैं, आई हैव नॉट कवर्ड दैट वेव इन अ बॉक्स. प्लेन वेव है व्हिच वी कॉल एज प्लेन वेव, राइट? प्लेन वेव है. मैं कहूँ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो यहाँ पर है, हियर. व्हाट यू से? यू से 0? यस मैम. नो, प्लेन वेव हैज अ प्रोबेबिलिटी टू बी एवरीवेयर. 5 square probability. It will be very, 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 very less, but it will be non-zero. बहुत कम होगी पर बहुत पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं होगी. तो टनलिंग वही है कि प्रोबेबिलिटी है कि वो बाहर भी दिखेगा, हालांकि वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी. बट सिंस इन क्वांटम वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, एनीथिंग कैन हैपन. वो चाहे कम प्रोबेबिलिटी के साथ हो रहा है बट हो सकता है. जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉजिटिव वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी. ओके. मतलब बात यह है कि तुम्हारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ने तुम्हें दिखा दिया कि पार्टिकल बॉक्स के बाहर भी पॉसिबल है. बट तुम्हें लॉजिकली जितना तुम जिंदगी में सब तक सीखते आए हो कि यार दीवार है बीच में तो कोई बाहर कैसे जा सकता है, तो फिर तुमने उसको टर्मिनोलॉजी दे दी कि वो टनल करके बाहर चला गया. बट दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से. इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट. There is a probability that it will be outside. There is a probability that it is inside.
Now how can that be possible? That we don't know. क्लासिकली वो कैसे पॉसिबल है, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ भाई वो हमें समझने के लिए आम इंसान को यही बोलेंगे कि वो बीच में से छेद करके निकल गया, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग. वी आर सेइंग कि वो बाहर हो सकता है. कैसे? Mathematically we can show, experimentally we can see. हाँ कि वो बाहर है. We cannot explain how it happened. तो वही जैसे फेनमैन ने कहा कि I think one can safely say that nobody understands quantum mechanics. किसी को पता नहीं, किसी को समझ नहीं आती. We are applying it, we are doing it, but all right. Thanks, Rhythm. I request there's anyone... one more question in chat window I can see by Amit Thakur. So moderator, I request you. Amit Thakur. Oh, he sent me a private chat. Oh, okay, Amit. So what is the question? The question is, what are the opportunities for doing PhD in quantum, and what are the research areas in India? Amit, can the moderator please put him like on Amit the screen? Thakur. Please put I Amit didn't Thakur understand his question exactly. Opportunities for doing PhD. Yes, Amit, please ask your question. Amit, मुझे तुम्हारा सवाल नहीं समझ आया. सरल भाषा में बता दो. मैम मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में अगर नहीं हो, क्योंकि अभी आफ्टर ऑल हमारा फाइनल ईयर है तो हमें पता होना चाहिए. तो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब कौन से रिसर्च एरियाज हैं जिसमें हम मतलब हमें पता होना चाहिए ना उसमें, तो वो पता नहीं, आप उसके बारे में बताओ. नहीं, क्या दोबारा बोलो. क्वांटम मैकेनिक्स में कौन से रिसर्च टॉपिक्स हैं जिन पे काम हो रहा है? अच्छा. ओके. अच्छा, ओके. इंडिया में क्वांटम पे तो देखो, आइजर मोहाली तो सबसे नजदीक है. वहां पे ग्रुप है प्रोफेसर अरविंद का, जो एक्सक्लूसिवली वो फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे भी वर्क कर रहे हैं. तो अभी भी हमें क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स भी नहीं समझ आए हैं. As I said, nobody understand quantum mechanics. तो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक साइंसेस पे भी वर्क कर रहे हैं. बट ये जो क्वांटम तो मैम हाँ मतलब जो है हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं मैम, मतलब यस मैम, मतलब रिसर्च में मैम मतलब करते क्या है, मतलब यही टनलिंग वगैरह या मॉडल वगैरह प्रेडिक्ट करते हैं या फिर नहीं, मतलब ये सब कोई तो हो चुका है, वगैरह या क्वांटम कंप्यूटिंग? हाँ, ये सब करते हैं. क्वांटम कंप्यूटिंग जो हो चुका है वो तो नहीं, पर वो जो हुआ है थ्योरेटिकली, या तो आप एक्सपेरिमेंटली उसको अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो, बना सकते हो. जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करती हूँ, इस फील्ड में क्या है, 3 कैटेगरीज हैं. पहला, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एटम्स को लेकर गेट सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. लैब्स हैं, इंडिया में कम है, अब्रॉड में बहुत लैब्स है ऐसी. और या फिर आप थ्योरेटिकली भी काम कर सकते हो. तो ये तो एक्सपेरिमेंटल हो गया. इसमें थ्योरेटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, आपको बताएंगे कि भी एटम की क्या प्रॉपर्टी, कौन सा एटम यूज करूं मैं. So you need these atomic calculations. या NMR है तो मैं मॉलिक्यूल कौन सा यूज करूं, एंड सो ऑन. तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बिल्ड कर रहे हैं. फिर आते हैं एल्गोरिथम्स, जहाँ पे थ्योरेटिशियंस वर्क करते हैं कि एल्गोरिथम्स बनानी जो हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकेंगे. एंड देन हाउ टू कम्युनिकेट इज द थर्ड फील्ड. मैम इसका मतलब फ्यूचर स्कोप क्या है फिर, अगर आफ्टर डूइंग पीएचडी इन क्वांटम कंप्यूटेशन, तो मतलब इसका पीएचडी के बाद मतलब स्कोप है? You can get absorbed in any. See, ये जो IBM है, गूगल है, ये तो ट्रेमेंडसली हायर कर रहे हैं, क्योंकि इस समय तो बिल्कुल भाग दौड़ है, रेस है इस फील्ड में. कौन पहले बनाएगा ऐसा है. तो इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा स्कोप है. एकेडमिया में तो ऑब्वियसली है ही है, रिसर्च लैब्स हैं. थैंक यू मैम. Moderator, please put Janvi Gupta on screen so that she can ask her question. Hello. Yes, My question is how can we transport cells? How can we teleport something like there is something is on satellite and we are teleporting it on China or on the Earth? कैसे बेसिक साइंस की होती है इसके पीछे? अरे इसके लिए तो तुम्हें पूरा मुझे और एंटायर टॉक देनी पड़ेगी, पर है एंटेंगलमेंट से रिलेटेड है. अगर मैं कोई भी चीजें एंटेंगल कर सकती हूँ तो मैं उनको टेलीपोर्ट भी कर सकती हूँ. पर हाँ, एक तरह से प्रोबेबिलिटी है कि कुछ भी मतलब वो डिपेंड करता है कि वो कितना मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी कि कितने परसेंटेज है, मतलब उस पर मैथमेटिकल है सब कुछ.
क्लासिकल नहीं है, क्लासिकल नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे जब हम टेलीपोर्टेशन की बात करेंगे। ऑब्वियसली एंड रिजल्ट विल बी लाइक प्रोबेबिलिस्टिक, टेलीपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, बट टेलीपोर्टेशन जो है वो सुपर पोजिशन से या प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट, इट्स रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड दिस एंटेंगलमेंट। और उसके लिए बहुत मुझे शायद बहुत टेक्निकल डिटेल्स में जाना पड़ेगा एग्जैक्टली होता है क्या, बट इट्स अ ब्यूटीफुल क्वांटम सर्किट। आई हैव टॉट दिस टू माय स्टूडेंट्स इन क्लास कि यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मैं भेजना चाहती हूँ वीनस को, मेरी तरफ से गायब होगी और वीनस को मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज वी हैड शेयर्ड अ एंटेंगल्ड पेयर। तो मैं और वीनस हैं, वी मीट ईच अदर, we take two spinning coins, एक spinning coin मतलब entangled coin जो है वो Venus अपने घर ले जाएगा, एक spinning coin मैं अपने घर ले जाऊंगी। So these two coins are entangled. What I'm going to do is the information or the photon which I want to transfer to Venus, वो information मैं वो अपने entangled coin में डालूंगी। And since I'm doing something on my entangled coin, automatically that information is reaching Venus because this coin was entangled to the coin which Venus had. तो मैम ये जैसे अब जाएगा कैसे, करने कैसे होगा मैसेज, कोई होता है कि मेजरमेंट करनी पड़ेगी, then Venus will do measurement, then he'll read out. So the thing is, मैम एक बस सर एक सेकंड, I'm very happy, I'm curious, they're curious. Yes, I am, ma'am, I am your department student, first year. Nice. मैम एक निकोला टेस्ला ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने कहा था कि हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं, उसने मतलब कोशिश करी थी, तो उसने यूज की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसने यूज किया था अल्टरनेटिंग करंट इस काम के लिए। ओके अब मैंने तो ये सिर्फ नेट से देखा है, तो मेरे को अब हो सकता है मतलब कहीं ना कहीं गलत भी बोल रही हूँ, तो ये सब कुछ हम इससे रेडिएशन से करते हैं, वेव से करते हैं बेसिकली। नहीं, इसमें कोई जो एंटेंगल्ड है वो तुम्हें वेव से नहीं एंटेंगल्ड है ना, हाउ दे आर एंटेंगल्ड, इट्स समथिंग लाइक कॉल्ड PEPR पैराडॉक्स, वी डोंट नो कि मेरा कॉइन और वीनस का कॉइन कैसे एंटेंगल्ड है, दिस वी डोंट नो, दिस इज ओपन क्वेश्चन, मे बी यू कैन वर्क, दिस इज अनदर फील्ड वेयर पीपल आर वर्किंग, एंटेंगल्ड है कैसे। मैं यहाँ पे कुछ कॉइन के साथ कर रही हूँ, तो वीनस का कॉइन क्यों फ्लिप कर रहा है या स्पिन कर रहा है, हाउ दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज नॉट थ्रू वेव्स, वी डोंट नो हाउ इट गेट्स ट्रांसफर्ड, बट इट डज। इफ आई डू समथिंग हियर, वीनस का कॉइन ऑटोमेटिकली स्पिन करना शुरू करेगा, वो नेचुरली है मैम, हमने ह्यूमन नहीं कर सकते वो एंटेंगल, ह्यूमंस को एंटेंगल नहीं, हम क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स को तो अभी तक तो नहीं एंटेंगल कर सकते हैं, तो द जुड़वा मूवी is a completely wrong concept. Thanks Janvi, thanks a lot. Welcome sir. So maybe we'll ask take a last question because it is already getting late. So Vivek Veer again wants to ask something. He's a youngest chap, so I will give him the benefit of doubt because we have some questions on the chat also, but I'll still go for Vivek Veer. Sure. So sir, yes, Vivek Veer. Hanji. So why do they travel from one, so why they could travel from one wall to another wall, and why they want to travel? Oh, why they want to, they don't want to travel, वो करना नहीं चाहते, वो हो जाते हैं, वो करना नहीं चाह रहे, वो चाह नहीं रहे कि बाहर जाऊं, बट हाँ इस चीज की जो ट्रैवलिंग हो रही है ना विवेक, जो अंदर से वो खुद ट्रैवल होके बाहर जा रहे हैं, ये हमने बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया, हमने बहुत चीजों में ये चीज, ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने इतने अच्छे एपरेटर्स बनाए ना, जब बड़े हो गए तो तुम्हें पता चलेगा ये TEM, AFMs, ये सब जो है ये इस कंसेप्ट पे बेस है कि एटम ने वॉल क्रॉस कर ली थी, हालांकि उसके पास एनर्जी नहीं थी, मतलब मैंने वॉल क्रॉस कर ली हालांकि मैंने खाना नहीं खाया था, समझ रहे हो, तो वो करना नहीं चाहते हैं, हाँ, तो कर जाते हैं, करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है मतलब। विवेक वीर बहुत डीप क्वेश्चंस पूछता है कि ये चीज बनी क्यों और ये चीज कर, बट बेटा इन चीजों का आंसर वेरी वेरी डिफिकल्ट कि कोई चीज क्यों बनी और वो क्यों करना चाहती है, वहां तक आंसर अभी तो यही समझ लें हम कि ये चीज हो रही है और यही बहुत है कि ये क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, मोटा मोटा इतना समझ आ जाए वही काफी होगा, बट yeah, I mean I'm very happy to see that he has these questions of why yes, this thing nice. is there and why this thing is doing that. So we are already we have already exceeded the time, so I would like to curtail the session here because otherwise I mean I am pretty sure there are so many questions people want to ask, but they can obviously write to Bindya ma'am, or they can call her, I'll be happy and to
and ask the questions, all the queries they have. It is a very, very limited interactions. The idea was to introduce the audience to the world of quantum physics and quantum computers. हालांकि मैं बिंदिया जी से भी जब बात कर रहा था कि लोगों को क्वांटम में ज्यादा इंटरेस्ट होगा क्वांटम कंप्यूटर से भी, so वही बात है कि सबके क्वेश्चंस भी यही है कि क्वांटम में ये चीजें फैसिनेटिंग चीजें होती कैसे हैं और क्या है. But as the idea was कि quantum computers basically किस principle पे बने हैं, which she has explained brilliantly, and आगे इसकी क्या possibilities है, current possibilities क्या है, and as she said, there is a lot of opportunity in this field. If you do a PhD or higher studies in this field, you are going to get picked up in a very good place. So people who are interested in, and it's fascinating also to work on that. So I would say thanks a lot, Bindiya ji, for giving us all this information. Thanks a lot. I enjoyed it a lot. It must have been very, very difficult for you to explain things in such a trivial way. But कई बार वो करना पड़ता है. I'm really thankful to you. Thank you so much. Thanks a lot. I thank the audience for attending the session. And please join us tomorrow also. There is another another session on patent attorney, how to become a patent attorney after doing your graduation, post-graduation, or higher studies in basic sciences, how you can become a patent attorney. And that will be, the information will be given to us by Dr. Sudarshan, who is also right now in the process of becoming a patent attorney. He did his basic sciences, PhD in basic sciences, biological sciences, and now he's working into that. He will introduce to us what does the field look like, how intellectual property rights and all those things. And that session will be at the same time tomorrow. So please attend that. And I hope I will see many of you tomorrow also. And I hope you like this session. And all those people who have other questions, other queries, please contact Bindiya ma'am via email or via phone. And thanks a lot for attending the session. Thank you.